Okay, very good morning, students. First of all, start your videos so that I can see your faces. Hurry up. Yes, that's good. Students, many of you have not sent their notebooks for checking till now. Yesterday also I sent messages in the group. So please start sending your complete copies, complete PDFs for checking as well as practical files. Okay, students, only few students have sent. चलिए let us start. Videos किसी के नहीं on हुए. Start your videos. Hurry up, everybody. If not, I'll also switch off my video. Hurry up. Yes, very good, Bhavya. Very nice. Good, Akriti. Bhavesh. Very good. Samrat, video on करो बेटा. Okay, प्रेरणा. चलिए. अब please keep your videos on throughout the class. Okay. Yes, Sanchit. चलिए. Students, let us move to our chapter. हमने करा. There are two modes of reproduction in plants, asexual mode and sexual mode. We had covered asexual mode till yesterday. हमने fragmentation देखी, हमने budding देखी, हमने spore formation देखी, हमने vegetative propagation देखी. Now come to the sexual mode of reproduction in plants. Sexual means in which the reproductive parts are involved. Reproductive organs are involved. हमने क्या कहा था? Root, stem, leaf. ये जो है they are the vegetative parts. उनमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा था. इसमें क्या है? दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं. दो पेरेंट्स मीन्स मेल एंड फीमेल. Got it? और इसमें क्या इन्वॉल्व है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. इज दिस क्लियर? सो आते हैं हम प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे. सबसे बड़ी बात, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर. अब फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. अब इस फ्लावर में देयर आर स्टेमन and pistil, which are the reproductive organs. In flower there are stamen and pistil, which are reproductive organs. Stamen is the male part and pistil is the female part. Got it? Is this clear? इतना clear है सबको? This is the male reproductive organ and this is the female reproductive organ. Now let us study what is stamen. Stamen क्या होता है? As I told you, it is a male reproductive organ. It has two parts, anther and filament. स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट. ये जो स्वोलन पार्ट है, टिप है स्वोलन, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज एंथर. एंड ये जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज फिलामेंट. गॉट इट? नाउ दिस एंथर, इफ वी कट इट, अगर हम इसको काटते हैं, इसके अंदर क्या निकल के आते हैं? पोलन ग्रेन्स. डस्ट जैसा कुछ पाउडरी सा मटेरियल निकलता है जिनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स. इन पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमीट. क्या होता है? मेल गैमीट. इज दिस क्लियर? इतना क्लियर हो गया?
Now coming to pistil. Pistil is the female reproductive part. Okay, so it consists of 3 parts: stigma, style and ovary. ठीक है, this is the stigma, this is the style and this is the ovary. This stigma, it is the sticky tip. ये क्या है? Sticky tip which receives the pollen grains. Got it? Now this style, it is a long tube that connects stigma and ovary. In other words, you can say it is the passage for the pollen grain to move, male gamete to move. Now this ovary, it contains bead-like structures called ovules. इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं that are known as ovules. These ovules, they produce female gamete. क्लियर है? ये ovules प्रोड्यूस करते हैं फीमेल gamete. With this female gamete is called egg, जिसको egg भी बोलते हैं. Is this clear? स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट? एक और चीज का ध्यान रखना, एक ओव्यूल के अंदर एक ही एग होगा. इज दिस क्लियर? वन ओव्यूल will produce one egg. Right? क्लियर है? अब इससे जरा हटते हैं. हमने करा फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, क्या मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर में होते हैं? ठीक है, तो there are 2 types of flower called unisexual and bisexual. Uni, as the name suggests, 1. Bi, name suggests 2. So unisexual flowers कौन से flowers हैं? That have only one organ for reproduction, either male or female. Unisexual flowers are those flowers which have only one organ for reproduction, either male organ or female organ. Clear है? Bisexual flowers कौन से हैं? The flowers which have both the reproductive organs, which have both the reproductive organs on the same flower, both stamen and pistil, they are known as bisexual flowers. क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सो हम इनको कंप्लीट फ्लावर्स भी बोलते हैं. We call them complete flowers also. क्लियर? और चूंकि यूनिसेक्सुअल के अंदर एक ही ऑर्गन है फ्लावर के अंदर, चाहे मेल चाहे फीमेल, इनको हम इनकम्प्लीट फ्लावर्स भी बोलते हैं. यूनिसेक्सुअल में आते हैं वाटरमेलन, बिटर गोर्ड, पपाया वगैरह, ककम्बर. ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं रोज, बाइसेक्सुअल में गुलमोहर, चाइना रोज, लिली, ये सारे. हाँ जी भावेश बोलिए बेटा. मैम बाइसेक्सुअल वो फ्लावर्स में एक और बारी
वो उसकी definition Bisexual repeat कर दो। flowers are those flowers which have both the reproductive organs on in one flower only. Means male and female parts are present in the same flower. क्लियर है भावेश? क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? अब हमें इतना पता चल गया कि होता क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या है, होती कैसे है। तो अब हम स्टेप्स लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म के। मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें? फर्स्ट आता है पॉलिनेशन, सेकेंड आता है आफ्टर पॉलिनेशन इट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप एस भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, ठीक है। देन आता है फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, सीड या फ्रूट बनेगा। देन कम्स जर्मिनेशन ऑफ सीड, फिर सीड की जर्मिनेशन होगी एंड अ न्यू प्लांट इज सीड। ये 4 स्टेप्स हैं, हमने चारों पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में चारों हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन क्या होती है? What is pollination? हाँ जी, हाँ जी Ma'am, transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination. राइट, बिल्कुल ठीक है। क्या होती है पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। कहां से ट्रांसफर होना है पोलन ग्रेन्स का? फ्रॉम एंथर, एंथर में होते हैं ना, टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लियर है? अब पॉलिनेशन होती कैसे है, ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कैसे होते हैं, चाहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है चाहे बाइसेक्सुअल है, अपने आप वो चल के तो जा नहीं सकते अब स्टिग्मा तक, तो पोलन ग्रेन्स पहुंचते कैसे हैं? देयर आर 2 ways ऑफ पॉलिनेशन। 2 तरीकों से होती है पॉलिनेशन। वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, another is cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन होती है, सेल्फ एज क्लियर फ्रॉम द नेम, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए। समझ में आए? जब एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा में आ जाएं, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ, एक और केस में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, अगर जैसे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ प्लांट, ये यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, इसके अंदर मेल है, ठीक है, इसी की एक ब्रांच है, एक फ्लावर लगा है, इसके अंदर ये फीमेल है। तो अब
इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर ये पोलन ग्रेन्स पहुंचे हैं, तब भी हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे। क्लियर है? तब भी हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? इसमें कोई डाउट? अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है जब इस प्लांट का फ्लावर ये किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर, उसी काइंड के फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन हो रही है। ठीक है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ जी कनव, एनी डाउट? बाकी पॉलिनेशन कल मैं आपको लैब लेके चलूंगी, वहां पे भी थोड़ी सी हम देखेंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन्स वगैरह वी विल चेक। यस, बताइए कनव, एनी डाउट? मैम एक बार सेल्फ पॉलिनेशन दोबारा बता दो। सेल्फ पॉलिनेशन एज क्लियर फ्रॉम द नेम मींस अपने आप। एक फ्लावर है, उसके अंदर दोनों ऑर्गन्स हैं, मेल और फीमेल। उसी फ्लावर में से पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गए, सेल्फ पॉलिनेशन। या ये भी हो सकता है उसी प्लांट की किसी दूसरी ब्रांच पे फ्लावर लगा हुआ है, वहां पे चले गए पर उसी प्लांट के, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्लियर है? चलो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ पॉलिनेशन का, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। बस एक मिनट, चलिए करें स्टार्ट। So this was all about the pollination. You watched the video. I hope till pollination, self pollination, cross pollination तक हमारा टॉपिक क्लियर है। अब कल हम करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, वी विल कवर दैट। उसके बाद हम लैब चलेंगे, ये पॉलिनेशन का प्रोसेस देखेंगे, एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट मैकेनिज्म, दैट इज फर्टिलाइजेशन। मोस्ट प्रॉब्ली वी विल स्टार्ट फर्टिलाइजेशन ऑन मंडे। अगर कल हमारे पास टाइम हुआ तो वी विल डू इट टुमारो। ठीक है, तो आज तक का इतना ही था। बिफोर एंडिंग द क्लास, लेट मी रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन, गेट रेडी फॉर योर एग्जाम्स। ये वीक छोड़ के उससे अगले वीक आपके रिवीजन टेस्ट शुरू हैं। स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली एंड कंप्लीट योर कॉपीज, सेंड योर कॉपीज एंड प्रैक्टिकल्स फाइल्स अप टू सैटरडे। चलो संडे तक ले लो, 2 दिन ले लो, आज का दिन, सैटरडे का दिन। संडे तक मुझे ग्रुप में सारा कुछ भेज दो। मैंने संडे के बाद आपकी क्लास की कॉपीज चेक नहीं करनी, मैंने डिफॉल्टर लिस्ट डाल देनी। आई एम नॉट गोइंग टू चेक एनी सिंगल कॉपी। एंड यू कॉपीज के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स हैं। जिनकी आ गई है 10-15 बच्चों की कॉपीज आ गई हैं, सारी आई हैं कंप्लीट, अच्छी कॉपीज आई हैं। बट व्हाट अबाउट द अदर्स? काइंडली कंप्लीट योर कॉपीज एंड सेंड इट इन द ग्रुप. Okay, now bell has gone. We'll be meeting tomorrow.